विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वी आर थैंकफुल टू माननीय प्रकाश जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, एंड माननीय रघुनंदन जी, जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, फॉर इनिशिएटिंग dialogue and discussion on various aspects of NEP. Today we are going to discuss the provisions of NEP and future of Indian education. इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री जगदीश प्रसाद सिंघल जी, नेशनल प्रेसिडेंट अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ABRSM. He is also president of Kesav Vidyapeeth, Jamoli, Jaipur. He has held various administrative positions such as Vice Chancellor of University of Rajasthan and Principal Agarwal College, Jaipur. He has also been member of various committees of state and central government. He has been awarded prestigious Pandit Madan Mohan Malviya Award by the Honorable President of India. He had also been founder member of Rajasthan University and College Teacher Association, RUKTA. You are most welcome, sir. Thank you. Thank you very much, please. This interview will be moderated by Professor Prashant Gupta. Professor Prashant Gupta is a senior faculty member at Indian Institute of Management, Trichy. He has served with International Management Institute also. He has conducted various training programs for more than 40 companies, including board level programs for more than 4,000 middle, senior, top level executives of almost all big PSUs like ONGC, IOC, Oil India, SPCL, and Coal India. Many international and national research publications of repute are to his credit. Currently, he is a member of Committee on Sustainable Finance at BIS, India, and also part of Global Working Group for forming standard on sustainable finance of ISA. So, over to you, Professor Gupta. अनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान का प्रकाश जी, रघुनंदन जी का भी धन्यवाद दूंगा। ये अपॉर्चुनिटी, ये सौभाग्य मुझे मिला हमारे अग्रज आदरणीय जेपी सिंघल जी के साथ वार्तालाप का। सर, बहुत आपके बारे में सुना भी है और कभी मुलाकात का मौका नहीं मिला, लेकिन इस नई विधा से आपसे परिचय होने का सौभाग्य मिला है और मेरा ये दृढ़ ऐसा विश्वास है कि आपके साथ जो वार्तालाप होगा उससे जो चीजें निकल के आएंगी वो हमारे सभी उन लोगों के लिए जो नई शिक्षा नीति को प्रयोग में लाने के लिए जो भी लगता है कि जरूरी जानकारियां हैं वो आपके माध्यम से हमको मिलेगी। तो सर, मीडियम हम मिक्स ही रखेंगे क्योंकि you can talk in English, basically English, because you may be much more comfortable in English. है तो हम लोग सब शिशु भारती और विद्या भारती से पढ़े हुए। हाँ, लेकिन बाद में जाकर के बदल गया होगा कि भाषण और वो क्लासेस सारा माध्यम। yes, इसीलिए that's why I am saying that. But जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हिंदी भी बोल सकते हैं। जरूर, no problems. जरूर सर। तो शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले तो आपसे यही संक्षेप में जानना चाहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में जो हम चेंज की बात कर रहे हैं, हाउ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म आवर एजुकेशन सिस्टम। Welcome Prashant ji and Anish ji. It is a very good opportunity for me to interact with such good people, rather professional people on the issue which is the National Education Policy 2020, which has been the talk of perhaps everybody this time in our country. If we talk about the National Education Policy 2020, is a way forward to transform the Indian education system as it incorporates the elements of equity, excellence, employability, expansion, affordability, and accountability. I can say there is nothing left out from this policy. It has provided us the opportunity to make our country vibrant knowledge superpower of the world.
The purpose of education as embodied by Swami Vivekananda ji is that life building, man making and character building that can be achieved because this policy, the center of this policy is Bharat, not only in thought, but also in spirit, intellect and deeds. This policy envisions numerous recommendations which are critical for invigorating the education system. These are focus on output in place of input, focus on passion, practicability and performance in place of process, effective governance, flexibility in choosing the courses, holistic education in place of compartmentalization, light but tight regulatory regime, autonomy to the higher education institutions, quality research, integration of vocational education with the mainstream, committed and capable faculty members, and the global exposure of teachers and students. This policy also aligns itself with the Global Sustainable Development Goals, SDG 4, which speaks ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning for all by 2030. But I believe that this education policy 2020 will prove to be a game changer for the foundation of New Bharat. This is what I hope it will be. Very rightly told, sir. Center focal point is Bharat and Yes. how Bharat can be transformed with this education policy. Now, when we plan, when we design, a lot of discussions and so many things have been done. What do you think that they are going to be major challenges in implementation? वो कहते हैं सर कि कहना सोचना आसान है बट करने में असली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. तो ड्राफ्ट तो बहुत अच्छी हुई है. अब उस अच्छी ड्राफ्टेड पॉलिसी को धरातल पर कैसे लाए कि सक्सेसफुली इसको हम इम्प्लीमेंट करें और जो हमारा उद्देश्य था वो पूर्ण हो. क्योंकि उसमें सर आपके जैसे अनुभवी लोगों के विचारों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने ग्राउंड रियलिटीज पे काम किया है, ग्राउंड रियलिटीज को आप जानते हैं. जो थियोरेटिकली बताया गया और जो प्रैक्टिकली करना होगा उसमें जो गैप है, तो आपके सुझाव वहां पे हम मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि उसको थोड़ा सा उसमें आप हमें डिटेल में बताएं कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक कथन याद आता है. जब वो संविधान बना रहे थे और संविधान को जब प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि संविधान कितना अच्छा हो लेकिन उसके प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति ठीक नहीं है तो अच्छा संविधान भी बेकार हो जाएगा. और दूसरा कहा संविधान चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो लेकिन उसके इम्प्लीमेंट करने वाले, उसको काम में लेने वाले लोग अच्छे हैं तो वो निश्चित तौर से श्रेष्ठ बन जाएगा. एंड दैट्स व्हाई द बेसिक चैलेंज इज बट आई बिलीव the attitude, mindset and culture of the different segments of the society including teachers and students. हमारा जो माइंडसेट है ना अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट है, अभी भी हमारा एक निर्धारित रास्ते पर चलने वाला माइंडसेट है. हमारी जो कल्चर है वो ज्यादा बेसिकली, मुझे ध्यान है एक बार कोठारी जी ने DS कोठारी जी ने कहा कि द सेंट्रल गिवेशनल फोर्स ऑफ एजुकेशन लाइज समवेयर इन बेस्ट, समवेयर बेस्ट. कहीं पश्चिम में हमारा जो केंद्र है ना, शिक्षा का जो केंद्र है वो पश्चिम पर निर्भर करता है. उस माइंड सेट से हम काम करते हैं, उस व्यवस्था से हम काम करते हैं. ये हमको बदलने की जरूरत है. और जब तक हम ये माइंड सेट न बदलेंगे, जब तक हमारे शिक्षकों की कहिए, विद्यार्थियों की कहिए, समाज सुधारकों की कहिए, नेताओं की कहिए, ब्यूरोक्रेट्स की कहिए, समाज के आम व्यक्ति की कहिए, जब तक वो बदलेगा नहीं, उनका संस्कृति नहीं बदलेगी, उनकी प्रवृत्ति नहीं बदलेगी, तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी नीति धरातल पर उतरना उसका संभव नहीं होगा. तो सबसे पहला ये एटीट्यूड बदलने की जरूरत है. इस पर हमारे संस्थानों को भी काम करना है, हमारे संगठनों को भी काम करना है. वी हैव टू, कहते हैं ना, जन जागरण करना होगा. वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल एट लार्ज. वी हैव टू गो टू द पब्लिक एट लार्ज. हमको जनता के समक्ष जाना होगा, बताना होगा कि इस पॉलिसी से हम कहाँ जा सकते हैं, इस पॉलिसी से हम कहाँ पहुंच सकते हैं.
इस तरह का परिवर्तन पहला जो चुनौती मुझे लगती है जो सबसे बड़ी है, जिस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, संस्थानों को काम करने की जरूरत है, वो एटीट्यूड को बदलने की है, माइंडसेट को बदलने की। दूसरी, तीसरी, चौथी सब सामान्य है। जैसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे लोग, जब भी मैं कहीं जाता हूं, अभी बहुत सारी जगह मैं इम्प्लीमेंटेशन पर बातचीत कर रहा हूं ऐसे वेबिनार में, तो कहते हैं साहब हमारा पास वी डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी डोंट हैव द प्लेग्राउंड्स, वी डोंट हैव गुड लाइब्रेरीज, वी डोंट हैव गुड इंस्टीट्यूशंस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए हमको, वी डोंट हैव दैट physical infrastructure, or we don't have the human infrastructure also, we don't have good number of the teachers who are going to teach to these students. तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एट द सेम टाइम if we have a commitment, if we have a mindset, even with this meager infrastructure, with this less infrastructure, we will be able to adopt those things which are good in this education policy. तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बातचीत जो करते हैं, बातचीत कहते हैं कि इसको सुधारना, सुधरेगा भी, क्योंकि सरकार का जो पॉलिटिकल बिल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पॉलिटिकल जो बिल है वो निश्चित तौर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन। फंडिंग की बात करते हैं, हमारे यहाँ लोग तर्क देते हैं कि हमारे यहाँ पर जो खर्च किया जा रहा है, हायर एजुकेशन सिस्टम पर जो खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो बहुत कम है। मैं अक्सर कहता हूँ कि दैट यू जस्ट गो इन द पास्ट, the education, including the higher education, was not the sole responsibility of the government in the past. It was the responsibility of the society. Now we have to change this system. We have to think in this direction that no, it's not the responsibility, mere responsibility of the government, central government or the state governments, but it is equally the responsibility of the society at large. समाज की जिम्मेदारी है। पहले समाज की जिम्मेदारी थी, समाज व्यवस्था करता था एजुकेशन की, समाज व्यवस्था करता था फंडिंग की, समाज व्यवस्था करता था किस तरीके से हाउ वी कैन रन दीज इंस्टीट्यूशंस। अब बदल रहा है, अब हम पूरी तरीके से आश्रित हो गए, सरकार पर आश्रित। तो सरकार खर्च करेगी तो संस्थाएं बनेंगी, सरकार खर्च करेगी तो फिर हम आगे संस्थाओं को बढ़ा सकेंगे। तो that thought process has to be changed. The society has to take the responsibility of education, that how we can, so funding जो कहते हैं ना हमारे बहुत कम खर्च हो रहा है, government has tried to say that we will be spending 6% of GDP on the education, so we will be getting some more money for the higher education system also, but at the same time if we do that this becomes the responsibility of the society, then things will be very much. एक और चैलेंज जो मेरे समझ में आता है, we are a large country and we are a young country also. कहते हैं ना हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत है, युवाओं का देश है तो हमको उसका लाभ मिलता है, तो लाभ के साथ साथ सीमाएं भी हैं उसकी, बिकॉज दीज मैनी पीपल who are the young certainly need something to do, they need something to get their kind of the requirement fulfilled, and that is the reason. तो ये जो यंग कंट्री है जहां हमको एक फायदा है, इसका एक सीमा भी है हमारी, कितने बड़े देश को हम किस तरीके से इस शिक्षा के साथ ऐसे बना करके चल सकें ताकि हम जो शिक्षा का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर के शिक्षा बनाई जाती है, शिक्षा दी जाती है, उसको हम पूरा करने का प्रयत्न कर सकें। इसलिए सभी लेवल्स पर, एट द लेवल ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एट द लेवल ऑफ द टीचर्स, एट द लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स, we have to work hard to see that these major challenges, issues which are there are overcome. बिल्कुल ठीक। इसी क्रम में जैसे आपने बताया कि उदाहरण दिया आपने अंबेडकर जी का कि अच्छे इम्प्लीमेंटर चाहिए, और अब सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स की कमी है, all our good higher education institutions, even if you look at IITs and IIMs and central universities where fund is not that big problem, even then if I mean so many RTIs people are sending, we are looking at that, faculty members are still not there. तो उसके लिए क्या करा जाए, क्योंकि आप शिक्षकों के साथ जुड़े रहे हैं, उनका आप संस्थान भी आप उसमें हैं, तो क्या करने की जरूरत है सरकार को कि टैलेंट को कैसे अट्रैक्ट किया जाए? जो बहुत अच्छा टैलेंट होता है उसको लगता है टीचिंग रिवार्डिंग नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है, वो निकल जाते हैं। तो उस क्योंकि वो आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे पहले हमें अच्छे लोग चाहिए, तो अच्छे लोग मिलेंगे तब हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या करने की जरूरत है?
सबसे बड़ी बात क्या है कि जो श्रद्धा है ना, फेथ, वो थोड़ा खत्म हो गया धीरे धीरे। लोगों का एजुकेशन में ना फेथ है, ना एजुकेटर्स में फेथ है। This is the situation that I believe is there. There is a lack of faith in society. Don't have the faith. The students don't have the faith, neither in education nor in the educators. So ये श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी हमको। श्रद्धा उत्पन्न होगी, लेकिन वो श्रद्धा अपने आप तो उत्पन्न नहीं होती। ये श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। हमारी जो कुछ मिसगिविंग्स हैं, कुछ इल्यूजन्स कहे जा सकते हैं, यू कैन से कुछ हमारी सिस्टम की कुछ खामियां कही जा सकती हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। वाई वी डोंट हैव द श्रद्धा क्यों नहीं है हमारी? पहली श्रद्धा कि हमारे टीचर्स वो नहीं दे पाते जो हमारा स्टूडेंट चाहता है। The teacher community is not giving that kind of the things which the students really required. If they are giving, they are trying to becoming so much compatible, capable, so that giving the students they according to their needs. कहते हैं ना, child centered education होनी चाहिए ना. If the education is becoming child centered, the student will try to have the faith in that. And if the teachers are giving them the best, then they will also have the faith in the teachers. तो अब कैसे बनेगा वो faith? तो पहली बात, टीचर्स को कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी, कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी पड़ेंगी, उनको अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा टू द न्यू एनवायरनमेंट, टू द न्यू सिचुएशन। दूसरा बात है, जो सिस्टम पर हमारा भरोसा खत्म हो रहा है, टीचर और एजुकेशन पर नहीं, सिस्टम पर भी, सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, सिस्टम ऑफ रिटेंशन ऑफ टैलेंट, सिस्टम ऑफ प्रमोशन, सिस्टम ऑफ यू कैन से सिलेक्शन, द पीपल डोंट हैव द फेथ इन दैट. We have to create a robust system which has the integrity, which has the transparency, by which the people are trying to repose themselves. They are trying to repose their faith in that system. हम टीचर की रिक्रूटमेंट करते हैं, लोगों में समाज क्या कहता है, अरे कुछ बात नहीं है, शायद ये जो अपॉइंटमेंट है ये क्वालिटी पर नहीं किया गया है, कोई सिफारिश पर किया गया है, किसी तरीके की और बहुत सारी बातें की जाती हैं। जगह जगह ये बातें जब चलती हैं तो सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। वी हैव टू क्रिएट दैट सिस्टम फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। एक और बात भी कही जाती है कि इसमें समय लगेगा। बाय द टाइम व्हाट वी हैव टू डू, we have to do away this things. We have so many old people, rather retired people. They were working with the education institution, now they are retired, they have a bill to work, but we are not providing them the opportunity, or rather I should say ecosystem, or I should say the environment in which they can come and try to give whatever the best they have in themselves. So we can try to take the services of these people so that they can try to contribute something for this education system. And one more thing which is there, that new technology, education technology is emerging. So the shortage of the teachers can be overcome to some extent with the help of making the best use of educational technology, so that we are providing what a teacher face-to-face is going to provide through this education technology. These are the few things which I can say I have in my mind according to that. अब आपने ये बिंदु उठाया कि फेथ बहुत जरूरी है, जो विश्वास है हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर वो होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं शटर हो रहा है। इसमें अगर मैं देखता हूँ तो दो तरह के विरोधाभास, जिसे मैं बोलता हूँ कि दो पैराडॉक्स दिखते हैं। वन साइड, young talented students passing out from top universities, top colleges, very less from that lot is actually attracted towards teaching. They have caliber. They either go, as you said, West centric, so the quality of the excellence stamping is when you are going to Oxford, when you are going to Harvard, then it is considered you are excellent. So that lot is there which is not very much attracted, and they move either to different professions or to different universities, but not in India, outside India. And one major reason might be the remuneration, the kind of remuneration they get there. Second paradox is those who don't get anything, they take up a job as a teacher, कुछ नहीं मिला साहब तो चलो हम यही बन जाते हैं, यही करते हैं। तीसरा जो पार्ट में देखता हूँ सर, जो
आपने बोला ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं करना चाहते या जिनको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये इन प्रकारेण कुछ इधर कुछ उधर करके किसी तरह से वो सोचते हैं कि ठीक है यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप मिल जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छी जगह पे, तो एक डिसेंट सैलरी मिल रही है, हमारा काम चलता है। ऐसे लोग भी सिस्टम में आ गए। तो इन सब के लिए करना क्या चाहिए, इसको व्यवस्था में हमें करना क्या चाहिए? बिकॉज आपने दोनों पक्ष देखे हैं सर, एज ए शिक्षक भी आपने देखा है और आपने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी देखा है। तो इसमें आपको क्या लगता है कहाँ पे स्कोप है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, सो दैट इस तरह की जो चीजें अंदर आ रही हैं उनको रोका जाए और जो अच्छा टैलेंट है उसको रोका जाए? मतलब दोनों को रोकना है, बुरे लोगों को अंदर आने से रोकना और अच्छे लोगों को जाने से रोकना। एक जो बहुत बड़ी बात है कि आप जो कह रहे हैं रिटेंशन ऑफ टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रादर इज ए मेजर चैलेंज आल्सो विद दी भारत के साथ ही बड़ी चुनौती है। हम जो कह रहे हैं ना, मेरा बेटा IIT से पढ़ा, IIT से बाद IIM में चला गया, IIM के बाद वो MIT चला गया। मतलब मैंने उससे पूछा कि भाई IIM आपके जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने कहा कि IIM में प्रोफेसर IIM पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत कम बनता है। IIT में बेसिकली IIT से पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत कम आपको प्रोफेसर मिलेगा। बाहर चला जाता है वो, मतलब कोई दूसरी जगह से इंजीनियरिंग करने वाला कहीं। देखिए IIT को पढ़ाने वाला व्यक्ति IITian नहीं है, दैट इज ऐसा IIM में भी हो सकता है। मतलब पहले IIM में था, अब तो नहीं हो रहा है, अब तो काफी IIM के पढ़े लोग आ रहे हैं। तो कारण क्या है इसका, रीजन क्या है, क्यों नहीं आता? शायद वो ये फील करते हैं कि शायद मेरी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ माय टैलेंट इज नॉट देयर, और I'm not getting that kind of the facilities or that kind of the, you can say, as you mentioned, remuneration or what you can say with this organization. तो ये जो अट्रैक्शन है टैलेंट का, अभी जैसे इस एजुकेशन पॉलिसी में दिया ना, फॉरेन एक्सपोजर के बारे में बात जो कही गई है, कहा गया है कि हाउ वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट द टैलेंट, सो वी हैव टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव competition within the system, and that is why foreign universities are coming to the India, starting their campuses, recruiting teachers, also having the students will have the competition with the Indian universities. भारत के विश्वविद्यालयों से उनका प्रतिस्पर्धा होगी। टीचर्स को, हर टीचर चाहेगा कि मैं इस भारत के विश्वविद्यालय से कोशिश करके किसी तरीके से इस विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लूं। विद्यार्थी भी चाहता है, विद्यार्थी भी चाहेगा कि वो किसी तरीके से प्रवेश कर ले। आज मान लीजिए वर्ल्ड की जो टॉप 30 यूनिवर्सिटीज हैं, उस पर लोग कितना प्रयास करते हैं कि वहां मेरा किसी तरीके से प्रवेश हो जाए। तो ये काम किया है इस एजुकेशन पॉलिसी में कि वो बाहर के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को यहाँ बुला रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे आमंत्रित कर रहे हैं, उनको कैंपस प्रारंभ करने के लिए दे रहे हैं। बट इट्स ए वेरी टफ टास्क, क्योंकि मेरे मन में आया, मैंने मंत्री जी के सामने बात रखी भी कि क्या 100 जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय वो आपके यहाँ आएंगे? क्यों आएंगे? You have to provide that kind of the flexibility to them, that kind of the environment to them, then and then they will come. हमारे यहाँ बहुत अच्छी फायदे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है हमारे यहाँ, एफोर्डेबिलिटी आसान है, आ सकते हैं, आना चाहिए। लेकिन एक काम जो किया गया है वो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज हमारे आएंगी तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। दूसरा हमने ये भी किया कि अपनी यूनिवर्सिटीज को हम विदेशों में भेजेंगे। वी विल आल्सो आस्क अवर यूनिवर्सिटीज टू गो outside the country, start their campuses, thereby providing an opportunity to the other countries student to get study there, to get education there, then and there itself. तो हमारे जो एजुकेशन खोलेंगे बाहर, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोजर है या हमारा जो बेस्ट पॉसिबल जो टैलेंट है उसका हम उपयोग कर सकें। और ये प्रूव हुआ है। एजुकेशन के अलावा there are numerous fields. Say from IIT, we are the leader in the world. IIT in the leader, maybe not be in the kind of the IIT hardwares and softwares, but we are the, as far as the employment is concerned, we are talking to sometime with the people कि हमको ऐसा कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम डेवलप क्यों नहीं कर पाते जो हमारा अपना है, स्वदेशी कहा जा सकता है। अभी हम आज गूगल की बात करते हैं और इंस्टाग्राम की बात करते हैं और ये तमाम बातें करते हैं, दूसरों की है ना, हमारी नहीं है ना। हमारे पास जब IT टैलेंट बेस्ट है, how we are not getting, because we have not provided them the ecosystem or that opportunity by which they can try to make best use of their
दे रहे। तो हमको ये सुविधा, एक काम किया है ये हर एजुकेशन सिस्टम में कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ आए और हमारी यूनिवर्सिटीज विदेश में जाएं, सो दैट वी विल बी एबल टू रिटेन द टैलेंट। एक काम। दूसरा करना कि हमारा एक, अभी मैं राष्ट्रपति जी का वो सुन रहा था भाषण, कि हमें हमारी फैकल्टी मेंबर्स की मान, मर्यादा और विकास, इस तीनों बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। वी हैव टू लुक फॉर कि उनका मान, इज्जत भी थोड़ी बढ़े, थोड़ी बढ़नी चाहिए, उनकी मर्यादा भी थोड़ी ठीक होनी चाहिए, और साथ के साथ उनका विकास, उत्तरोत्तर विकास होता रहना चाहिए। बिकॉज वन डजंट वांट टू स्टे एट वन प्लेस, ही वांटेड टू improve upon the system, and that is why it is very important for us to see कि किस तरीके से हम उनकी मान, मर्यादा और विकास को बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम काफी कुछ हद तक इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसको ठीक करने का प्रयत्न कर सकेंगे। There is a query related to the same discussion. Many time it comes to my mind. When we look at any top B school, global schools, engineering colleges, we find all Indians are there. अभी आप उठाएं तो कई जगह हमारे डीन और वो भी हमारे भारतीय हैं। सारी बड़ी कंपनियों के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उसमें से बहुत सारी कंपनीज में भारतीय हैं। तो जब रैंकिंग बनती है, QS 100 रैंकिंग या जो भी, इसमें टॉप 100, टॉप 200 में भी हमारे यहाँ से एक आध IIT दिल्ली या एक आध इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। हम अभी तक उसमें नहीं आ पाते। उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमें ऐसा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या इस तरह का कुछ हमको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिससे हम उसको एक्सप्लोर करें और हमारे भी संस्थाएं उस लिस्ट में शुमार हो जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया में? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बेस्ट 100 यूनिवर्सिटीज का जो कहना चाहिए नॉर्म्स है, वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। अगर कहीं कहीं आपने थोड़ा इस पर ध्यान दिया होगा, यू बीइंग ए प्रोफेशनल पर्सन, दैट्स नॉट इंडिया स्पेसिफिक, दैट इज वेरी बेसिकली वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज स्पेसिफिक। आपने बोला था कि वेस्टर्न सेंट्रिक है। हाँ, वेस्टर्न सेंट्रिक है। तो इसलिए उनका जो नॉर्म्स बनाए गए कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, वो नॉर्म्स भी वही हैं, उन्होंने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए। उन्होंने बना करके they are much more oriented towards them, not much more oriented towards us. That is one basic problem which I foresee that is there. The another thing which is important, that they are talking much more of the exposure, global exposure. That is what is lacking with our Indian universities or Indian university system, that neither our teachers nor our students nor our you can say the institutions are having the global exposure. There is global exposure of some IITs and IIM. They are sending students on student exchange program or sending teachers on the teacher faculty development program. But as far as other universities are concerned in our country, they don't have any global exposure. And that is why they are not understanding exactly what is going on in the world, what is needed in the global society, what they very basically do that. In this education policy, they have taken this thing very seriously, that we should be somewhere in that particular system. We will be somewhere in these 100 universities. Why not? When we were saying Guru, Vishwaguru, so why we were the Vishwaguru when the last, why we are not Vishwaguru today? Things are not changing. Things are the same, but only the mandate has changed, and that is why to become the restore the place of Vishwaguru, we have to work hard. We have to change the quality, because that this education policy is basically talking about the quality education, basically talking about the most you can say competitive education, compatible education. Then we do hope the things are not very far away from us. Then we will be again the Vishwaguru. एक जिज्ञासा कई बार मन में आती है सर, आपसे उस पे विचार चाहिए होगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, हमारा ग्लोबल एक्रेडिटेशंस में हम पीछे हो जाते हैं। ग्लोबल एक्सपोजर बहुत बड़ा रीजन है। पॉलिसीज हमारे को देख के नहीं बनी है, वेस्टर्न सेंट्रिक है। कहीं ना कहीं बहुत सारा रोल लॉबिंग और इसका होता है कि आप कितने सक्षम बन रहे हैं। ग्रेजुअली पिछले दो बार से जो हमारी सरकारें कर रही काम, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से काम किया है, तो पहले कोई पूछता नहीं था कि हिंदुस्तान कहाँ है, भारत कहाँ है, भारत के प्रधानमंत्री कहाँ है। आज उनको सुनते हैं
क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार के लेवल पे ये प्रयास होना जरूरी है, एक काइंड ऑफ लॉबिंग इज नीडेड, कि जहां ये बताया जाए कि जिस ग्लोबलाइजेशन की आप बात करते हो, भारत में ऐसे 3 यूरोप रहते हैं। सर है क्या? आप भी कितना हाँ, दुनिया गए हैं, आपने देखा। आप सर निकलिए यूके से पेरिस पहुंच जाइए, 35-40 किलोमीटर चलिए, 200 किलोमीटर चलिए, जर्मनी आ जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़िए फ्रांस आ जाएगा। तो सर 3 यूरोप तो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। तो बस फर्क ये है कि वो अलग अलग कंट्री बन गए, तो वो यहाँ से वहां मूव कर लिए, बोले हमने 5 कंट्री कर लिया। हमारा तो पूरा हिंदुस्तान इतना बड़ा, तो कहीं ना कहीं ये बताने की जरूरत भी है कि भाई एक्सपोजर तो यहाँ भी है, कितनी भाषाएं हैं, कितने कल्चर हैं, हर एक कल्चर से दूसरे कल्चर में पहुंच जाते हैं। आप अवधि से आ जाइए, तो आप पश्चिमांचल चले जाइए, तो आप बिहार चले जाइए, हर 100 किलोमीटर पर तो कल्चर चेंज है। कल्चर से। और हर 25 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, हर 25 किलोमीटर पर बोली ये बदल भी तो जाती सर है। ग्लोबल एक्सपोजर ही है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कई बार सरकार की तरफ से भी ये प्रयास ऊपर के लेवल से होना चाहिए, और ये प्रयास किया जाना चाहिए कि भाई इन सब चीजों को भी देखना चाहिए। हम लोग फाइट करते हैं सर, ग्लोबल एक्रेडिटेशन में वो आते हैं, आपके यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स कितने, हम कहते हैं भाई हमारे 25 प्रदेश के लोग पढ़ रहे हैं, तो आप अगर यूरोप की कंट्रीज देखो, हमारा हर प्रदेश आपकी कंट्री से बड़ा है। that's true. एक तरह से 25 जगहों के लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक है। You are right, because we need marketing also. Marketing of this education system. आप विदेश जाइए, अब वो कोई बता रहा था मेरे को, किसी का नेट पे जोक आया था, वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया। सर अमेरिका आप जाइए, अमेरिका की हिस्ट्री है कितनी, वो बोलेंगे एंशियंट प्लेस है, कितना पुराना, 300 साल पुराना, उसको ऐसे दिखाते हैं पता नहीं कितना पुराना 3000 साल पुराना। सर मुझे आश्चर्य होता है, यहाँ पे त्रिची में वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट फंक्शनल डैम है सर, चोलास का बनाया हुआ, 2000 साल पुराना डैम है, एज इट इज। मार्केटिंग नहीं करते हैं वो, आप सही कह रहे हैं, मार्केटिंग जरूरी है। चलिए एक और चीज सर इससे रिलेटेड आती है कि जब हम ग्लोबल पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं, आपने बीच में बात किया ऑटोनॉमी की भी बात किया, कि कंपार्टमेंट्स बनाए हैं उसको खत्म कर रहे हैं, यूनिफाइड कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल गवर्नेंस और गवर्नेंस स्ट्रक्चर का भी आएगा। क्योंकि अभी कुछ भी कहिए सर, हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा ही है कि चीजें ऊपर से नीचे परकोलेट डाउन होती है। तो अगर गवर्नेंस स्ट्रक्चर इस बात को समझेगा और उस तरह से अपने संस्थानों में चीजें और फैसिलिटेट कराएगा, तो आपको लगता है कि तो आपके विचार उसमें जानना चाहूंगा कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर का क्या इसमें रोल होगा और कैसे गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। The governance is very important, because so far the governance of our education system was very much, you can say, poor governance. I could call it a very poor governance, because the institution do not design, do not determine, do not do the kind of things which are required to be done. Or you can say we don't have autonomy. It's a autonomy only for the namesake only. मैंने कभी कभी कहा कि हमारे यहाँ जो गवर्नेंस है वो किस लिए है कि टीचर्स टीचिंग का इवन सिलेबस भी डिसाइड नहीं कर पाता है. There are places where the teachers are not even determining their board of study, they are having the subject forum and all that, but ultimately a thing is coming from the top and you are to do accordingly. So we don't have that autonomy, administrative autonomy, financial autonomy, even we don't have that 100% academic autonomy. So in such a case, what we need to make this autonomy in a real sense, And this is provided in this kind of, you can say, education policy 2020, that we will be providing them the graded autonomy. We will be having restructuring the whole education system. Three, one is the research intensive universities, another is the teaching intensive universities, and third, which we call the autonomous degree granting colleges. That will be the three layer, rather I should say, which are interconnected. So we have to think in this kind that we have a kind of the robust system by which we are providing the full opportunity, full participation, full freedom to the teaching fraternity to determine what is the future of this organization, what we need to do for the future progress. And if this is done, so no political interference, no bureaucratic interference, if it is done, then perhaps the things will change. That is one. Another thing which is important, the credibility. So the people who are governing has to be creditable one. It is one thing which is said very, I'll be very much
willing to share with you that most of the bureaucrats are saying the academicians are not good administrators. Academicians are not good administrators. Then I have given them examples. Then the good administrators are those who can administrate the things well. You are doing something not by virtue of your knowledge but you are doing by virtue of your privileges and your rights. And that is, if the same sort of rights and privileges are granted to the teacher, they can be better administrator than you. And this is the reason we have to start. So academic leadership programs, academic administrative leaders program, such programs we have to start. And that we have started it now in the leadership program. We have already started for the post of vice chancellors, directors, registrars, and all that. So if they are exposed to these programs, then they will be trying to know what various things we need to do in this administration. So that could be the another way by which the governance can be improved upon and the things can be changed accordingly. बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ सर, और थोड़ा सा प्रयास हम लोगों ने IIM त्रिची से शुरू किया। अच्छा, हमारे जो डायरेक्टर थे अभी चले गए, वो IIM नागपुर चले गए, तो उसके पहले तो हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोग्राम होता है टीक्यू, तो उसमें वाइस चांसलर्स एंड डायरेक्टर्स इन सबका ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने कराया। तो उससे ये समझ में आया कि गवर्नेंस में जब तक टॉप से नहीं होगा, बिकॉज वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स बोलते हैं हमारे हाथ बंद है, हमको ऊपर से कर नहीं सकते कुछ। प्रिंसिपल से बात करते हैं, जब डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल से, वो कहते हैं हमको ऊपर से नहीं मिलता। तो हमने सर प्लान किया, तो बीओजी से हमने शुरू किया ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा, बीओजी मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम, वाइस चांसलर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बाद संकाय अध्यक्षों पे आएंगे, तो फिर डीन्स और विभाग अध्यक्ष पे आएंगे, डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रार्स। उस क्रम में हम लोगों ने 2 वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव भी कराए, एक राजभवन के साथ सारे तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स का कराया था, और एक ओपन प्रोग्राम कराया था जिसमें करीब 40 आए थे। तो आपका बात बिल्कुल ठीक है, गवर्नेंस जब तक नहीं सुधरेगा कुछ होगा नहीं, और उधर से ही लाना पड़ेगा। तो इसमें सर एक और पक्ष गवर्नेंस का है, जब हमने बात की है ग्रेडेड ऑटोनॉमी की, स्पेशली जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात किया, यूनिवर्सिटी के अंदर में है अभी, और अब उनको हम ऑटोनॉमस बनाए, ताकि जो आपने बात की रियल ऑटोनॉमी की, कि वो अपना कोर्स खुद डिजाइन कर पाए, अपनी चीजें खुद डिसाइड कर पाए, तो उसमें क्या रोल होना चाहिए, बिकॉज वहां पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट हैं, तो उसमें जैसे आप लोगों ने सोसाइटी का भी लार्जर रोल है, तो आपके क्या विचार है सर, उसका गवर्नेंस सिस्टम कैसे डेवलप होना चाहिए, कैसे बनाया जाना चाहिए कि वो अपने हितों को भी ना ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर। ऑटोनॉमी का सर एक दूसरा पक्ष है कि लोग फिर मिसयूज करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या होगा सर, ऑटोनॉमी विद अकाउंटेबिलिटी। पता है सर, वहां से मैं वाइवा पीएचडी वाइवा छोड़ के आया, क्योंकि जब मैंने क्वालिटी देखी वहां, तो मैंने कहा भैया मैं नहीं साइन कर सकता। तो वो दोनों पक्ष है सर, तो उसके लिए गवर्नेंस का रोल कैसे होना चाहिए, और इस तरह की मिसयूज ना हो, हम कैसे कर सकते? सबसे बड़ी बात है कि जब हम संस्थानों के ऑटोनॉमी की बात करते हैं, और ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात जो इस पॉलिसी में की गई है, उसमें कहा गया है कि these 3 kind of the institutions are interconnected. The institutions working as autonomous degree granting college can transform and convert into the teaching universities, or teaching universities can try to convert into the research universities. That is what they have said. And they have also said that we will be trying to have no affiliation system. After 10 years, we will be thinking that there are no affiliated colleges. As you are saying, the basic problem is because of these affiliated colleges, because these are more or less very large number of the affiliated colleges are private colleges, and run by the private individuals, run by the private societies, and not doing fair kind of the work which is very basically there. That is also the private universities also. So they have done that. They said that what we need, the university has to help them. University has to help them, that these are the norms. The government will determine, the agency will determine these are the norms for becoming autonomous. So these norms has to be fulfilled by the institutions. And the university must help them. The government, state government must help these kind of the institutions who are run by the private individuals and societies, so that they can try to get
इन ए पोजीशन, दे आर इन ए पोजीशन टू फुलफिल ऑल दीज नॉर्म्स। जो मापदंड है उनको वो पूरा कर सकें, अपने आप नहीं कर सकेंगे वो, उनको थोड़ी मदद की जरूरत है, उनको बताने की भी जरूरत है, और सरकार की और विश्वविद्यालय की ये जिम्मेदारी है कि उनको ये बताए ताकि वो अगले आने वाले वर्षों में वो चीज पूरा कर सके, तो फिर ऑटोनॉमी मिलेगी उनको। और ये दूसरी बात जो कही गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, कि वी शुड डेवलप रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर दैट। आपने बहुत अच्छा कोशिश कर ली, लेकिन अगर कोई मॉनिटरिंग नहीं है तो वो सब कुछ बेकार है, वो नहीं होगा पूरा। और एक और बात करनी पड़ेगी कि मैं कहा करता हूं, आपसे भी शेयर करना चाहूंगा, जितना ह्यूमन एलिमेंट कम होगा, मींस एट द प्लेस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट सम टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस टू बी यूज्ड। जैसा हमने देखा ना, रेलवे का टिकट पहले मिलता नहीं था, लेकिन जब से ऑनलाइन टिकट मिलने लगा तो सुविधाएं खत्म हो गई, ब्लैक खत्म हो गया, बहुत बड़ी समस्या खत्म हो गई। ऐसे ही हमारा इस सिस्टम है, इस सिस्टम में जहां जहां ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से कुछ करप्शन आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, उस ह्यूमन इंटरवेंशन को जितना पॉसिबल हो सके हमें कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम ये कर सकेंगे तो जो हम सोच रहे हैं वो शायद आगे जाकर के पूरा हो सकेगा। अभी एक और बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है रिसर्च। हाँ जी। जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी, ग्लोबल रैंकिंग, और ये बताना कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल रिसर्च और शोध का है। उसके लिए आप एनईपी के हिसाब से हमारी नई शिक्षा पद्धति में बात करी गई है एथिकल एंड आउटस्टैंडिंग रिसर्च की। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपने भी देखा होगा यूजीसी उस पर काफी परेशान रहता है। पहले वो एपीआई स्कोर बना दिया तो पता लगा एपीआई के हिसाब से तमाम जर्नल पैदा हो गए। अब एक जमाने में 8-10 हजार जर्नल थे, फिर उनको छटनी हुई। तो वो रिसर्च की गुणवत्ता बनाए रखना, और उसकी जो आपने कहा, अभी आपने वर्ड यूज किया मॉनिटरिंग, वहां उसमें भी जरूरी है। उसके लिए आपके क्या विचार है सर, कैसे इसको बनाया जाए कि रिसर्च भी उत्तरोत्तर इम्प्रूव हो और उस पर कंट्रोल भी रहे? NEP 2020 has given a very good shape for this quality research. उन्होंने कहा कि हमें क्वालिटी रिसर्च करनी है, सोशली रिलेवेंट रिसर्च करनी है, ऐसी रिसर्च करनी है जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। मतलब दुनिया में हम कह सकें कि हमने कुछ शोध किया है। अभी हमने कहा कि हमारे पेटेंटिंग बहुत कम होते हैं, छोटे छोटे देश हैं हमसे ज्यादा पेटेंटिंग करा लेते हैं, क्योंकि हमारी रिसर्च शायद वो नहीं दे पाती है जो चाहिए इंडस्ट्रीज को। कम है, थ्योरेटिकल ज्यादा है। थ्योरेटिकल, अप्लाइड रिसर्च का अभाव है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर लैकिंग इन पेटेंटिंग इन ऑल दैट। तो उन्होंने कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगी। अच्छा सुझाव है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। उसमें बताया क्या क्या करेगी रिसर्च, मॉनिटरिंग का काम भी करेगी, लोगों को रिकॉग्नाइज करने का काम भी करेगी, कहना चाहिए मेरिट बेस्ड जो रिसर्च उसको प्रमोट करेगी। और कहा कि वी विल बी गोइंग टू क्रिएट रिसर्च कल्चर ऑफ रिसर्च। अभी कल्चर नहीं है रिसर्च करने की, अभी तो कहा पीएचडी की डिग्री लेने की, आई होप यू विल नॉट माइंड इट, है ना, पीएचडी की डिग्री लेने की होड़ है। इसी तरीके से हमको कोई एक छोटा सा 200 पेज का दस्तावेज लिखा है हमने और उस पर हमको डिग्री मिल गई और हमने कहा हमने रिसर्च करी। दिस इज नॉट रिसर्च। सही बात, दिस इज नॉट रिसर्च। तो रिसर्च रियल सेंस में होगी जब रिसर्च की कल्चर डेवलप होगी। तो कल्चर डेवलप के लिए कुछ मेरे मन में जो विचार हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा। पहली बात है कि जो एनआरएफ बनाया जा रहा है, उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर है, दैट इज टू बी डिजाइन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द वेरियस यू कैन से द डिफरेंट यूनिवर्सिटी सिस्टम्स। हमारे जो यूनिवर्सिटीज है उनको उनकी जो नीड है, नीड बेस्ड होनी चाहिए। वो स्ट्रक्चर उसका जो है नीड बेस्ड होना चाहिए, उसका लोकेशन भी नीड बेस्ड होनी चाहिए, ताकि हम उस रिसर्च एनआरएफ का सही फायदा उठाने का प्रयत्न कर सकें। एंड दूसरी बात है कि देयर शुड बी सीमलेस इंटरेक्शन एंड मोबिलिटी ऑफ रिसर्चर्स। वो बड़ा लैकिंग है। हमारा रिसर्चर है वो मोबाइल नहीं है, जाता नहीं है एक दूसरी जगह नहीं जाता है। तो डिफरेंट जो अक्रॉस द गवर्नमेंट कहिए, डिफरेंट एजेंसीज कहिए, डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कहिए, उसका एक्सपोजर होना चाहिए उन तमाम क्षेत्रों में। ही शुड बी वेरी मच मोबाइल फॉर दैट।
और ये जो मल्टीपल फंडिंग एजेंसीज है ना आजकल, आपको इससे पैसा नहीं मिला तो डीएसटी से मिल जाएगा, डीएसटी से नहीं मिला तो कहाँ से, लोग होड़ मचा रहे हैं किस बात की कि हमको रिसर्च करने के लिए पैसा मिलना चाहिए। कैसी रिसर्च होगी, दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन टू देम। तो ये जो मल्टीपल एजेंसीज हैं, दे शुड बी पुल टुगेदर। इनमें जो कुछ है इन सबको एक कर देना चाहिए ताकि ये जो मल्टीप्लिसिटी है वो खत्म हो जाए। और कॉमन रिसर्च फैसिलिटीज, एक बात जो मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ कि there must be some common research facility. Maybe some institutions are not having that capacity, that capability by which they can try to provide best research facilities. So we should have some common research facilities at a particular center. Maybe in 10 universities, maybe in 20 colleges or 50 colleges, there is one center that is the research facility center where we are providing all sorts of facilities to them. So the researchers came over here, try to discuss and deliberate with the various person. Some mentoring is, some mentors are also there. They can try to mentor him. So that is it. And there must be some mandatory internship program also for the researchers. Right. कभी ये जाता है ना तो चुपचाप, मैंने ये हमारे हायर एजुकेशन के शिक्षकों के लिए भी कहा कि देयर शुड बी सम मैंडेटरी ट्रेनिंग टू देम बिफोर गोइंग टू द क्लासेस, गोइंग टू द इंस्टीट्यूशन। इट इज ए मैंडेटरी बना देना चाहिए। अभी तक पता ही नहीं है, आपने एमकॉम किया, एमए किया, एमएससी किया, पीएचडी की, सीधे आप भेज दिया आपको एजुकेशन के लिए, पढ़ाइए आप एमएससी क्लासेस को पढ़ाइए। तो क्या पढ़ाता है आप सब जानते हैं कैसे पढ़ाता है। वी डोंट हैव द पेडागोजी, वी डोंट नो द skill set of that kind of the things which we need to have for that. So it is जरूरी है। और कुछ थोड़ा इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हमारे इनके साथ एसोसिएट करें हम रिसर्च सेंटर्स के, ताकि जो रिसर्च कर रहे हैं उसको हम इंक्यूबेट कर सकते हैं वहां पर। इस तरह की चीज करना चाहिए। और जो कहा गया रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसर्चर्स भी करें तो थोड़ा ये ठीक हो सकेगा, ऐसा कुछ मैं मान करके चलता हूं। एक और बात निकल के आई आपसे डिस्कशन में कि एनईपी इम्प्लीमेंटेशन में जो एक्सपेक्टेशंस है उसके लिए बहुत सारे चेंजेस की जरूरत होगी। जैसे आपने पहले तो बोला माइंडसेट चेंज चाहिए, उसके अलावा स्किल सेट चेंज की भी जरूरत होगी। जब आप आईसीटी का यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, तो आपको लगता है कि टीचर ट्रेनिंग नॉट ओनली फॉर चेंज स्किल सेट बट आल्सो फॉर द बेसिक ट्रेनिंग फॉर द न्यू टीचर्स हु आर स्टार्टिंग स्पेशली इन हायर एजुकेशन, दैट सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नीड टू बी डेवलप्ड। आपने गवर्नेंस के लिए तो बिल्कुल, आपने वहां भी बोला था कि एकेडमिक लीडरशिप प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो शिक्षकों के लिए भी कुछ स्टार्टिंग के टाइम पे और कुछ मिड करियर के टाइम पे ट्रेनिंग प्रोग्राम की आवश्यकता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। रादर मैं तो ये कहूंगा कि बिकॉज दिस एजुकेशन पॉलिसी इज ए बिग चेंज from past to present, and that I call it a futuristic education policy it is. तो बहुत बड़ा चेंज है इसमें, परिवर्तन है। और वो परिवर्तन भी कैसा है, एक्टिव है ये। इट्स नॉट पैसिव चेंज, अपने आप नहीं आ रहा है। इट्स नॉट कमिंग ऑटोमेटिकली, इट इज कमिंग विद द इंटरवेंशन ऑफ यू कैन से द एजुकेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट्स, इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरवेंशन ऑफ वेरियस यू कैन से द स्टेक होल्डर्स। एंड दैट्स व्हाई we need to adapt ourselves with the new changes. ये कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है जो बहुत साधारण कहा जा सकता हो। मैं इसको असाधारण परिवर्तन मानता हूँ। और इसलिए हम सही मायने में हमारा जो प्रेजेंट फैकल्टीज हैं, दे आर नॉट वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर इट। दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स, एंड फॉर दैट व्हाट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, द ट्रेनिंग। दे हैव टू डेवलप सर्टेन काइंड ऑफ द स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स कहिए, बिहेवियरल स्किल्स कहिए, एनालिटिकल स्किल्स कहिए, कंसेप्चुअल स्किल्स कहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स कहिए, you can say IIT skills कहिए, communication skills कहिए, and numerous kind of the skills we have to develop in ourselves. We don't have them. We are lacking in them. Even when you are going or I am going to various kind of the seminars and symposium, I do find some of my colleagues who are not well versed with this information technology. They are not in a position to just upload a video or upload a lecture, or trying to do some kind of the classes through Google and all that. So this needs to be done, and for that what we need, training, rigorous training, so that we can because what I believe that the biggest power with the teacher is the influence. Is he and she in a position to influence the students? That power of influence is very important. And that ability
to influence the students has to be created in the teacher. Then and then he will be able to attract good students, then he will be able to attract the credibility of the students and the society. And for that, कहते हैं ना कि अभी मैं कह रहा था सॉफ्ट पावर, आजकल दुनिया सॉफ्ट पावर पर चल रही है. मान लीजिए अमेरिका को क्यों कहा जाता है कि वो बड़ा कंट्री, क्या है उसमें, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, उसके पास कोई एंशिएंट कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके पास सॉफ्ट पावर है, गूगल है और पता नहीं फेसबुक है और ये तमाम है, दैट इज द सॉफ्ट पावर. तो जो सॉफ्ट पावर है उसका इन्फ्लुएंस है वो, दैट इन्फ्लुएंस इज ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्ट पावर. तो इसलिए वो हमको भी इस प्रकार की जो हमारा टीचर है ना, उसको ये सॉफ्ट पावर है ना, ये डेवलप करनी पड़ेगी. और जब ही that for that we have to build intellectual and you can say institutional capacities and capabilities for that. Then it's what education technology, we are taking integration of education technology. The teacher has to do all this. मन में सवाल तो सर बहुत सारे आ रहे हैं, बाध्यता भी है. प्लीज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसेट है जो अभी मुझे लगता है आपसे और मैं पूछ लूं, बाकी फिर दोबारा मौका मिलेगा तब जरूर आपसे डिस्कस करेंगे. हम विश्व गुरु थे, हमारे पास नालंदा था, विक्रमशिला था, हमारे पास तक्षशिला था. अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बात किया है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात किया है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं. तो सर आखिरी में इन दो चीजों को जरूर जानना चाहेंगे कि कैसे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन कैसे उसको अपने करिकुलम में लाए. दोनों ही चीजें, एक तो वैल्यू बेस्ड के वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए क्या करना है, और हमारा जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था उसकी लर्निंग्स को और उसके तरीकों को हम कैसे अपने सिस्टम के अंदर लाएं. बिकॉज ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है. लोगों को आदत पड़ गई है वो मैकाले वाले सिस्टम की, हम उसी पद्धति पे उसी ढर्रे पे चले जा रहे हैं. तो वो एक काफी बड़ा चैलेंज लगता है. आपके बहुत बड़ी बात है आपने जो कहा है कि हमारा रिच एंशिएंट नॉलेज के हम कह सकते हैं प्रभारी रहे हैं, गुरु रहे हैं, ज्ञानदाता रहे हैं. और ज्ञानदाता ही नहीं, हम तो अर्थदाता भी रहे हैं. अगर आप पुराना हमारे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहा जाएगा 30% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाज डन इन इंडिया ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन अब धीरे धीरे करके हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो चुके हैं. तो मैं कभी कभी आपसे भी शेयर करूंगा कि हम लंबी अवधि तक गुलाम रहे ना साहब, तो गुलामी का जो असर है वो हमारे दिमाग पर पड़ गया और हम मन से गुलाम हो गए. मतलब मन से गुलाम हो गए, दिमाग से गुलाम हो गए. हमने अपने शुरुआती सेंटेंस याद आ रहा है सर, आपने कहा था माइंडसेट चेंज करने की. हाँ, तो दिमाग से गुलामी जो है ना उसको खत्म करने की जरूरत है. अदरवाइज हमको एंशिएंट अच्छा ही नहीं लगेगा. आज हमको अच्छा नहीं लगता. हम बच्चे क्या करते हैं कि गुड मॉर्निंग कहना समझते हैं, नमस्कार कहना अच्छा नहीं लगता उनको. हमें 1 जनवरी मनाना अच्छा लगता है, हम वर्ष प्रतिपदा मनाना अच्छा नहीं लगता. हमें केक काटना अच्छा लगता है, हमें अपनी पुरानी जो भगवान के यहाँ जाकर के नमस्ते करना, भगवान के जाकर के ढोक देना, वो अच्छा नहीं लगता. आज की जनरेशन का ये हाल है. क्यों है ये? कि धीरे धीरे हम अपनी जड़ से, जो हमारी जड़ से जानबूझ करके, हमारे जो विदेशी लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमको हमारी जड़ से अलग कर दिया. हमने कहा रे ये सब गोरख धंधा है, ये सब अंधविश्वास है, हमारे यहाँ जो ज्ञान वगैरह कुछ नहीं है, दिस इज दे डोंट हैव ऑल दैट. और हमने उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया. अब दोबारा रिवाइवल की जरूरत है. तो रिवाइवल करना पड़ेगा, तो थोड़ी मेहनत का काम है. कहते हैं ना रीपैकेजिंग भी लगता है सर करना पड़ेगा. हाँ, रीपैकेजिंग. ये आयुर्वेदा जब हमारे दादी नानी बताती थी तो हम लोग नहीं मानते थे. वही आयुर्वेदा बढ़िया पैकिंग में आता है तो हम 100 गुना प्राइस भी देते हैं, और आयुर्वेदा अब काम कर रहा है, अच्छा भी लगने लगा, भी काम कर रहा है, अच्छा भी करने लग गया. लोग उसको अब जैसे कोरोना के टाइम पर लगा कि आयुर्वेद ही शायद एक दवाई रह गई है. इससे पहले चिकनगुनिया के टाइम पर लगा लोगों को कि आयुर्वेद ही एक दवाई रह गई है. उसका उपयोग भी किया, बहुत बड़ी संख्या में उपयोग किया गया उसका. तो ये परिवर्तन हमको लाने के लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत है. और हमको जो पुराना कहते हैं ना, हमको गुड बाय टू यूरोसेंट्रिक जो एजुकेशन है, यूरोसेंट्रिक जो सिस्टम है, उसे गुड बाय कहना पड़ेगा. मन से हमको हटाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा. और भारतीय वैल्यूज और भारतीय जो हमारा अच्छा है, जड़ है, उस जड़ से पुनः जुड़ने की आवश्यकता है. बहुत बड़ा काम है. चाहे वो
इसलिए कहते हैं ना, इंडिया रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी, इंडिया रेस्पेक्ट कल्चर, सब कुछ रेस्पेक्ट करते हैं, फिर भी उस कल्चर से जो हमारी है, हम उससे जुड़े तो हैं, उस पर काम नहीं कर पाते, उस पर काम नहीं कर पाते हैं। और इसलिए एक काम जो बहुत बड़ा है कि तक्षशिला में क्या होता था, नालंदा में क्या होता था, ये लोगों के सामने आना चाहिए। अभी क्या है कि तक्षशिला का नाम ही है, हम बोल देते हैं और हो गया, तक्षशिला में अच्छा होता होगा। अरे हमारे 99% लोगों को ये पता नहीं है कि तक्षशिला में पढ़ाने का सिस्टम क्या था, वो शिष्य संवाद था तो कैसा था, उसकी परंपरा क्या थी, पेडागोजी क्या थी, किस तरीके से पढ़ाते थे। वो चीज आज हो सकता है लागू ना हो, उस समय ये था कि केवल बोला जाता था और आदमी समझता था। अब उसकी जगह प्रेस आ गया, उसके साथ बहुत सारी चीजें, अब तो कंप्यूटर आ गया, आईटी आ गया, तो बहुत सारा परिवर्तन हो गया। तो इस परिवर्तित परिस्थिति में हमको क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू इन दिस, क्योंकि कहा जाता है ना, वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, दे कैन बी कॉट। पकड़ी जा सकते हैं, पकड़ना पड़ेगा हमको। अब पकड़ना कहाँ से पड़ेगा, जरा जड़ से पकड़ना पड़ेगा तो ही कुछ काम होगा। और इसलिए फोकस्ड प्रयास करने की जरूरत है। फोकस्ड प्रयास करेंगे। लोक विद्या, इसमें कहा गया है एजुकेशन पॉलिसी में कि लोक विद्या को महत्व दिया जाएगा। हम नए कोर्सेज मटेरियल डिजाइन करेंगे, वो वैल्यू बेस्ड होंगे, कंटेंट्स में डेवलप किए जाएंगे जो पूरी तरीके से हमारे भारतीय होंगे। भारत में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको केवल प्रोपेगेट करने की, उसको थोड़ा आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी बात हम कही जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने विचार रखे, और लग तो ऐसी रहा है कि हमारा वार्तालाप और आगे बढ़ता रहे, बट अनीश जी ने हमें टाइम दिया था 45 मिनट का, हम उसको भी क्रॉस कर गए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक बात। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी की है, जो हमारे उसके बारे में मेरा बहुत मन है कि भाई ज्यादातर जो लोग कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी इज गोइंग टू क्रिएट ए प्रॉब्लम सम टाइम, कि फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी तो हजारों की तादाद में कोर्सेज हो जाएंगे। और एक फियर जो हमारे टीचिंग कम्युनिटी में आ रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरा कोर्स पढ़ने वाला ही नहीं रहे। मतलब मे बी देर आर सम कोर्सेज वेयर द स्टूडेंट्स आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो उन्हें क्या करना चाहिए, इस फ्लेक्सिबिलिटी इज गोइंग टू क्रिएट ए काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। तो भाई ये फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, ताकि एक बच्चा जो लर्निंग ट्रेजेक्टरीज जो है, लर्निंग प्रोग्राम्स है, जो इसके इंटरेस्ट का है, उसकी रुचि का ले सकता है। तो क्या करना है उसको, तो हमें सेंसिटाइजेशन ऑफ टीचर, सबसे पहले सेंसिटाइजेशन ऑफ टीचर करना है कि उसको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, जिसका वो मास्टर है, जिसके बारे में वो ज्यादा समझता है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो स्टूडेंट्स को प्रमोट करे, स्टूडेंट को प्रमोट करे। फिर सेंसिटाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स भी करना है। स्टूडेंट का सेंसिटाइजेशन करेंगे तो ही वो समझ में आएगा कि व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी। वो कहते हैं ना, दोराहे पर खड़ा हुआ है, उसे वो दिशा नहीं है। दिशा ज्ञान कौन देगा, टीचर देगा, और दिशा ज्ञान देंगे तो फिर उसको करना पड़ेगा। और सेंसिटाइजेशन ऑफ पेरेंट्स भी करना है, क्योंकि पेरेंट्स आजकल चिंता किस बात की करते हैं, पर्स कितना मिलेगा, इसकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, तनख्वाह कितनी मिलेगी मुझको, वेतन कितना मिलेगा। वो वैल्यूज पर ध्यान नहीं दे रहा है, मानव बनेगा कि नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, ही डजंट बॉदर फॉर दिस, ही बॉदर मच मोर हाउ मच मनी ही विल बी गेटिंग फॉर दैट। तो ये सेंसिटाइजेशन ऑफ पेरेंट्स की जरूरत है, तभी वो ये फ्लेक्सिबिलिटी होगा। और एक इंपॉर्टेंट है कि जो कंटेंट्स हम डेवलप करेंगे उसकी कोई डिपॉजिटरी हम बनाएं, एक जगह कोई बनाए, ताकि जो भी व्यक्ति उसका उपयोग करना चाहे उसको उपयोग करने की बात वो कर सके, ये बहुत जरूरी है। और एक साइंटिफिक टेम्पर, क्योंकि आप सभी लोग समझते हैं कि until unless you have created a scientific temper in the minds of the people, जब तक ये क्रिएट नहीं होगा साइंटिफिक टेम्पर, तब तक ये नहीं कर सकेंगे। इसलिए we have to ensure convergence of all streams of knowledge and minimizing conflict। जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उनको सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा, तभी हम कह सकेंगे कि जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है उसका हम उपयोग कर सकेंगे। और वी कैन मेक अवर एजुकेशन global or quality, or you can say superpower we can become. That flexibility is the core issue to, from my point of view, that if you want to make the system viable, then flexibility is very important for that. ये मैंने अपनी तरफ से आपको थोड़ा समय ले लिया। नहीं, ये हमारे उसमें आपसे पूछना भी था, पर हमारा समय खत्म हो गया। हाँ, समय समझ गया मैं, इसलिए कुछ अच्छी बातें और पूछ ली आपने, उनके अलावा इट्स वेरी नाइस फॉर यू। बहुत अच्छा आपके साथ रहा, इट्स वेरी नाइस इंटरेक्शन विद यू पीपल। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, आपके ज्ञानामृत हम लोग को मिला, और बहुत सारी चीजें, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम में नहीं होने से कुछ चीजों से हम लोग थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो वो भी आपके थ्रू उसका पता लगा। एंड
जैसे मैंने पहले भी कहा था, मुझे पूर्ण विश्वास है ये इस डिस्कशन से जो भी लोग देखेंगे उनको कुछ इंसाइट्स मिलेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस में कैसे हमको डील करना है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत नमस्कार, दोनों को बहुत नमस्कार, Please, प्रशांत जी और अनीश जी। नाइस ऑफ यू, प्लीज, थैंक यू, so much, sir. Thank you so much. थैंक यू, प्लीज थैंक यू। प्लीज प्लीज, थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज। नमस्कार.